Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic carbohydrates. In this lecture we will discuss the definition and the composition of carbohydrates, then the types of the carbohydrates, and after that we will discuss some physical properties of carbohydrates and their uses. So first of all, what are the carbohydrates and how we can define the carbohydrates? Carbohydrates basically is one of the macromolecule which is present in a living organisms, and that molecules or the macromolecules are formed by the very simple element or the compound which are present in our surrounding or in our environment. So being the macromolecule, as we know that the macromolecules are the molecule which consist of the very large number of the atoms, and they are larger in a size. So carbohydrates are the macromolecules which are formed by the polyhydroxy of aldehyde and ketones. Polyhydroxy, poly mean many, hydroxy mean hydroxyl group. So in this molecule many hydroxyl group are present along with any one of the functional group. या तो वो functional group aldehyde होगा या फिर ketone. Aldehyde functional group in which the carbonyl carbon atom is attached with one hydrogen atom, and second side is attached with the carbon atom chain, and in ketonic group in which the carbonyl carbon atom is both are connected by the some carbon atom or carbon chain. In our previous lesson we have discussed the functional group in detail. So technically the basic definition of carbohydrate is that the carbohydrates are the polyhydroxy of aldehyde or ketones. फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी. इज़ इट क्लियर? सो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें, सो द जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट इज CnH2n. Here n is the natural number and maybe 1 2 3 depending upon the how much carbon atoms are present in it, so we will place here. ठीक है. सो इस जनरल फार्मूला में देखें कार्बन एटम प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. इसी की बेस पे ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दिया है. कार्बो मीन कार्बन एटम एंड हाइड्रेट्स. इस फार्मूला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन डेट इज़ 2:1 है. बिल्कुल वही है जो कि वाटर में होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. सो उसी से इसको रिलेट करके हाइड्रेट्स का नाम दिया है. कार्बोहाइड्रेट्स डेट इज़ कार्बन एटम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम है जैसी वाटर की है. वाटर के लिए हम लोग हाइड्रेट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स. सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज़ ग्लूकोज दैट इज़ C6H12O6. इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 6. सो हेयर वी विल अगर मैंने इसको इस जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो ये कैसे आ जाएगा? क्योंकि कार्बन एटम 6 है तो n की जगह क्या आ जाएगा? 6 H2O, और यहाँ पे भी अगेन n की जगह क्या आ जाएगा? 6. अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो सिम वही हो जाएगा 6 to the 12 and 6 1 the 6. C6H12O6. दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन and about the some functional group of the carbohydrates. Now we will discuss the type of the carbohydrates. Basically they are the three type of the carbohydrates. The first type of the carbohydrates is called as monosaccharides. Number first type is called as monosaccharides. Now what are the monosaccharides? अगर इसका नाम देखें, मोनो मीन वन या यूनिट एक चीज़, एंड सैकराइड मीन शुगर. ठीक है. सो मोनोसैकराइड्स आर द compounds which consist only one unit of the sugar. Is it clear? And that one unit of the sugar consists of the number of the carbon atoms, and the number of the carbon atoms may be 3 to 9. 3 से लेके 9 तक एक यूनिट के अंदर कार्बन एटम होंगे और वो पूरा एक यूनिट जो है वो एक मोनोसैकराइड्स कहलाएगा. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की ही एग्जांपल ले लें, दैट इज़ द C6H12O6. हाउ मच कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट? दैट इज़ अ 6, and it is the range of these monosaccharide units. So
ग्लूकोज इज़ द मोनोसेकेराइड, ठीक है, जिसमें 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड. एज इट कंटेन द 6 कार्बन एटम सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द हेक्सोस. हेक्सोस मीन कि ये ऐसे कार्बन एटम्स हैं, जिस ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम 6 है. हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6. अगर 3 एटम होंगे उसके अंदर, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेटली ट्रायोस, ठीक है, और ट्रायोसिस बोलेंगे. अगर इसके अंदर 4 हो जाएंगे, 4 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, टेट्रा का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रोसिस. अगर 5 हो जाएंगे, 5 कार्बन एटम्स होंगे, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द पेंटोसिस. इज इट क्लियर? So this is the example of the carbohydrates. So carbohydrates की another example which is very famous, that is the fructose. फ्रुक्टोज का भी अगर जनरल फार्मूला देखें, अगेन इट इज़ अ C6H12O6. सो ग्लूकोज का भी फार्मूला वही है, डैट इज़ द C6H12O6. इसी तरह से फ्रुक्टोज का भी फार्मूला यही है, डैट इज़ C6H12O6. तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क देखने के लिए अगर हम इनका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका फ़र्क जो है वो ईजिली पता चल जाएगा. सो ग्लूकोज में चूँकि 6 कार्बन एटम है, अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी, 6 कार्बन एटम ड्रॉ करूँगी. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम हो गए हैं. ठीक हो गया. डेफिनेशन आपकी ज़हन में होनी चाहिए. डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे अलॉन्ग विद एल्डिहाइड और कीटोन. या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा. ठीक है, लेट्स हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ एल्डिहाइड. इज़ इट क्लियर? ठीक है. और बाकी बिकॉज इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी, सो पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है कि हर कार्बन एटम के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा. इज़ इट क्लियर? और बाकी कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए कौन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम. 1 2 3 4 5. Is it clear? So this is the compound in which the glucose is composed of the 6 carbon atom. पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एटम. और इसमें फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहाँ पे कौन सा इंडिकेट हो रहा है, मैं फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर इंडिकेट कर देती हूँ. और यहाँ से पता चल रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा है, डैट इज़ द एल्डिहाइड. ठीक है. इसी तरह से अगर हम लोग फ्रुक्टोज का फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो फ्रुक्टोज में भी क्या है, 6 कार्बन एटम है. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, 6 कार्बन एटम है. 6 कार्बन एटम अगेन इसमें भी क्या है कि भी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी. और कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन. फ्रुक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है डैट इज़ द कीटोन. ठीक है. बाकी सेम इसमें भी ऐसे ही है कि हर कार्बन एटम के साथ जो है वो आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच कर देना है. और बाकी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम आ जाएगा. इज़ इट क्लियर? ठीक है. सो दिस इज़ अ कीटोन. ये आपके पास जो फॉर्मूला है, ये दिस इज़ अ कीटोन जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी कार्बन है और दूसरी तरफ भी क्या है, कार्बन है. जबकि ये आपके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया, कीटोन्स. जबकि एल्डिहाइड में क्या था कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन एटम ज्वाइन होती है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज. और फंक्शन ग्रुप चेंज होने से हमारे पास कंपाउंड भी चेंज हो जाते हैं. इज़ इट क्लियर? सो अगर हम लोग मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो नॉर्मली दे आर द सॉलिड्स. ये जो है सॉलिड होते हैं. ठीक है, यानी कि हार्ट शेप के होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, यानी कि क्रिस्टल्स बनाते हैं ये. इसके अलावा दे आर सॉल्युबल इन वाटर. वाटर सॉल्युबल होते हैं. क्यों वाटर सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर.
एंड बिकॉज दे आर कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट होते हैं, इसलिए शुगरस कंपाउंड होते हैं. thirdly they cannot be hydrolyzed. हम इनको हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते. हाइड्रोलाइज का मतलब उसको ब्रेक करना. हम उसको मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज इसके नाम से रिप्रेजेंट है, ये वैसे ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक मुकम्मल यूनिट है, एक ही यूनिट है. ठीक है, हम इस एक यूनिट को मज़ीद छोटे यूनिट में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास कौन से होंगे, दे आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल. इज़ इट क्लियर? सो these are the some physical properties of the monosaccharides. The next type of the carbohydrate is the oligosaccharides. Now what are the oligosaccharides? Oligo का मतलब होता है few, यानी कि कुछ, चंद, and saccharide mean sugar. So few sugar mean few sugar unit का मतलब है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा शुगर यूनिट आपस में कंबाइन होंगे और वो मिलके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे. दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकराइड्स. इज़ इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर एक आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक आपके पास एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाता है, दो यूनिट मिल रहे हैं, ये एक मोनोसैकराइड है और ये दूसरा मोनोसैकराइड है. ठीक है, अगर ये दो यूनिट, कुछ यूनिट शुगर के आपस में मिल रहे हैं और वो कुछ में हम लोग सिर्फ 2 यूनिट की एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 यूनिट शुगर के आपस में मिल रहे हैं, तो जो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज हैं, दे आर कॉल्ड एज द माल्टोज. इसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज. सो माल्टोज विल बी द ओलिगोसैकराइड विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 unit or 2 sugar unit of the carbohydrates. Is it clear? So अब इसमें भी कुछ रेंज है कि सारे के सारे यूनिट आपस में मिलके ओलिगोसैकराइड नहीं बनाते हैं. इसमें कुछ यूनिट है, जैसे कि हमने मोनोसैकराइड में पढ़े थे ना कि 3 to 9 कार्बन आइटम्स अगर कंबाइन होंगे तो दे आर कॉल्ड एज अ मोनोसैकराइड. तो ओलिगोसैकराइड में भी ये है, या तो 2 यूनिट कंबाइन होंगे या फिर 3 या 4, और इसकी अपर लिमिट क्या है? 9, यानी कि मैक्सिमम 9 यूनिट आपस में कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज़ कॉल्ड एज द ओलिगोसैकराइड्स. ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ द ओलिगोसैकराइड इज़ द सुक्रोज, जिसको हम आम ज़बान में शुगर भी बोलते हैं. ठीक है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? दैट इज़ द C12H22O11. अभी सुक्रोज बनता कैसे है? अगर 2 ओलिगोसैकराइड, जैसे यहाँ पे 2 ओलिगोसैकराइड कौन से थे? ग्लूकोज. लेकिन अगर अब ग्लूकोज के साथ बजाय इसके कि ग्लूकोज मिले, उसके साथ अगर हम लोग फ्रुक्टोज को मिला दें, ठीक है, 2 मोनोसैकराइड्स आपस में मिल रहे हैं, देन दे विल फॉर्म द सुक्रोज. और डेफिनेटली जब भी 2 आपके पास मोनोसैकराइड मिलेंगे, दे ऑलवेज रिलीज़ वाटर, वो हमेशा पानी भी आप बीच में से रिलीज़ करेंगे. क्यों? डेफिनेटली कि जब आपस ये दोनों यूनिट मिलेंगे तो एक का हाइड्रोजन दूसरे का हाइड्रोक्सो ग्रुप निकलेगा, वहाँ से लिंकेज खाली होगी तो आपस में कंबाइन करके सुक्रोज बना देंगे. इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द these are the some example. The another example of the oligosaccharide is the lactose. और lactose हम सबको पता है कि which is the present in the milk or the dairy product, and the lactose is formed by the glucose and galactose. ठीक है, glucose and galactose, these are the 2 monosaccharide which are combined together to form the lactose. और अगेन क्या रिलीज होगा? वाटर मॉलिक्यूल. इज़ इट क्लियर? So this is the some basic information about the oligosaccharide. And if we talk about the some general properties of the oligosaccharide, then number 1, again they are also the solid है, and they are the crystalline. ठीक है, क्रिस्टलाइन शुगर्स बनाते हैं, ये क्रिस्टल होते हैं, एंड दे आर soluble in water.
अगेन वही बात, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलॉक्सो ग्रुप होता है, हाइड्रोलॉक्सो ग्रुप की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एंड थर्डली दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। अब ये हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं, क्यों? बिकॉज के इट इज़ फॉर्म द नंबर ऑफ द यूनिट। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, हम इसको ब्रेक करके दोबारा से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, दे आर द ब्रेकेबल, ये टूट सकते हैं, ठीक हो गया। एंड थर्डली दे आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि ऐसे हैं कि जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, दूसरों की रिडक्शन करवाते हैं, खुद इनकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द पॉलीसेकेराइड। थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड नेम से रिप्रेजेंट है, पॉली मीन मैनी एंड सेकेराइड मीन शुगर यूनिट, ठीक है। सो ये आपके पास एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल। ये ओलिगोसेकेराइड से लार्ज होते हैं। ओलिगोसेकेराइड में तो हमने इसको लिमिट कर दिया था ना कि भाई 9 से ज़्यादा यूनिट कंबाइन नहीं होंगे। अब अगर इसमें 9 से ज़्यादा बल्कि 1000 एंड हंड्रेड्स में अगर यूनिट जाते हैं तो वापस मिलकर क्या बना देंगे, डेफिनेट दे आर कॉल्ड एज द पॉलीसेकेराइड्स। एंड क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा यूनिट आपस में मिल रही हैं, तो इनका यूनिट आपस में मिलने के बाद, यानी कि 100 यूनिट मिल रहे हैं, 1000 यूनिट मिल रहे हैं, दे दीज यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लस्टर, ठीक है। एक गुच्छा सा बना देते हैं, एक क्लस्टर बना देंगे, एक शील्ड बना देते हैं, यानी कि एक ये हार्ड चीज़ बना देते हैं। सो बेसिकली ये जो है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पॉलीसेकेराइड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स आर द स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है। वही बात, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से या क्लस्टर होने की वजह से एक हार्ड चीज़ बना रहे हैं, यानी किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं। सेलुलोज के अंदर भी जो है वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। एक से 100 और 1000 ऑफ द मोनोसेकेराइड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। और अगर हम लोग पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो नंबर फर्स्ट, डेफिनेटली दे आर सॉलिड होते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या बताया कि इसमें नंबर ऑफ़ द मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते जाते हैं और इनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होता जाता है। सो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने की वजह से इसमें हाइड्रोलॉक्सल ग्रुप्स भी जो है वो कम होते जाते हैं। अब जब इसके अंदर हाइड्रोलॉक्सल ग्रुप कम हो जाएंगे तो पानी में जो पोलैरिटी आती है, पानी में उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिजॉल्व करने के लिए जो पोलैरिटी वो हाइड्रोलॉक्सल ग्रुप की वजह से आती है, अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर ये पानी में भी सॉल्युबल नहीं हो सकेंगे। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड थर्डली दे आर आल्सो द नॉन रिड्यूसिंग एंड दे आर द एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टलाइन नहीं होते बल्कि कौन से होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द carbohydrates. And if we discuss the some uses of the carbohydrates, तो uses में क्या हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि नंबर फर्स्ट, ये जो है हमारे पास बेसिक, अगर हम लोग इसके यूजेस को डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट काम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये हमारे बॉडी में। अगर शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है तो उसके लिए उसको हाई करने के लिए जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो है वो इनटेक करते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये बाउल फंक्शनिंग को बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इससे हमारी बाउल फंक्शनिंग या हमारा जो इंस्टेंट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारा अच्छा या बैलेंस्ड में रहता है, ठीक है। द थर्ड, इसके जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये हमारी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, उसको सही डायरेक्शन में रखता है, ठीक है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, इट प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। ये हमें क्रैम्पिंग से बचाते हैं, हमारी मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस आर द सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स।
Thank you.